Okay, so let's start with today's lecture. मैं screen share करूँ आपके साथ. We will go through the slides, the rest of the first part of the lecture course, which is mechanical behavior of materials, and then we move today towards the design of first element, that is design of a key. So let's start. First, I will share the screen. Okay, hopefully everyone can see the screen. Kindly confirm. Yes, sir. Okay, that's it. Okay, so if you remember, I just use slides to write. If I want to write something, I use slides to write the thing, and because this screen is recorded, so you will then provide with the recorded lecture. Okay, so if you remember from the last class, we have gone through a concept called true stress, and just for a quick revision, the true stress is the stress that is actually the instantaneous stress at any point. So sigma is equals to F over A. So area at that particular point will be put in this formula. काइंडली मुझे स्क्रीन नजर नहीं आएगी. इफ समवन इज कमेंटिंग तो वो मुझसे पूछ सकता है, मतलब ऑरली क्वेश्चन हो तो आप कमेंट ना कीजिएगा, मुझे कमेंट नजर नहीं आ रहे. तो वैसे ही माइक ऑन करके अपना सवाल पूछ लीजिएगा, अगर कोई सवाल पूछना हो. So that's what we are talking about. So true stress, because area, so this is a point, this is we call as proportional limit, after which the behavior tends to be non-linear, and this non-linear behavior, as you have already studied in mechanics of materials, is associated with the plastic deformation, and you have already known this is called plastic deformation. And after that, the area of the actual your specimen tends to be reduced, because the area tends to be reduced from this point onward. So let me change the color. So the area from this point tends to be reduced. So what is that? What is the consequence? The consequence is the stress keep increasing. So from this point, from proportional limit till onwards, area keep reducing till a point where it actually got fractured. So because areas keep reducing from, it's keep reducing, so the stress keep increasing, and that's why the true stress will always be greater than the engineering stress. The true stress curve will always be rising rather than falling down. And why this is falling down engineering stress? Because we always use the original area for calculation of stress. Again, stress as a whole is not measurable. You cannot measure the stress, but you can calculate the stress. So calculation for engineering purposes, we use A naught, which is the original area, but instead in true stress we use the actual area. Now for practical purposes, it's very difficult to find the area for at each point because it's keep reducing. So generally when you draw a curve, the curves will look like this curve. And the case is because you cannot trace the area, so always use the A naught, which is the area before plastic deformation in your calculation. That's why it's keep decreasing, because area will not change and the force will keep decreasing as material goes towards failure. So that is the case we are discussing last time. So I also told you in the class that you have to solve this you have to solve this problem yourself. So I will discuss in detail how you have to solve it. Now let's go quickly through these concepts, so we will have to start the next topic, which is the design of key. So toughness is basically the ability of material to absorb energy up till fracture. So which means that the ability that a material can, if you apply a force on a material, it will keep absorbing the energy of that force unless it actually fails. So for brittle materials, it fails generally at this point. At this point, this is the failure
This is the failure of ductile materials, clear? And this is the failure of brittle materials. So if you see the energy, the area under the curve represents the energy absorbed. So if you look at the area of stress strain curve, which already studied in detail in mechanics of materials, so area under the curve actually tells you that the area under the curve for brittle material is far less than the area under the curve for ductile materials. This means that the ductile materials have larger ability to absorb energy up till fracture. That energy is called the toughness, or sometimes called the modulus of toughness. So modulus of toughness is generally a response, and modulus of toughness is the amount of energy absorbed by a material until it got into actually fractures. So you can see a very large area for ductile materials. You can see this whole area which I am shading is for ductile materials, and if you look at for brittle materials, so area is actually very small, which is only this area. So that's why 99%, I'm just quoting a generic statistical value, 99% of machine elements or components are made of ductile materials. And only because of this property, the property of absorbing energy up till fracture. That is the idea, that is the reason behind most of the machine element. The common ductile materials are steel, aluminum, copper, brass, alloys, different type of alloys, inconel, monel, and there are the other stainless steels, high speed steel, mild steel. So and one of the common metallic example of brittle material that generally we use is the cast iron. So cast iron is one of the classical example of the metallic brittle material. Well, other brittle material like glass is not metallic, but cast iron is the metallic. It's has a metallic nature, but it's basically a brittle material. So if you just uh, if it you can throw it from a certain height like 1 meter, 2 meter, actually breaks apart. That is the reason, because it cannot stretch, it cannot perform plastic deformation before it actually fails. So that is what I am talking about, and that's why most of the materials you will see, most of the, if you go to any machine, for example, most of the cars, your lathe machines, milling machines, your sewing machines, and hundreds of machines in industry. Most of the material, most of the structural components. Structure means the frame, the body is made from aluminium or aluminium alloys, and the rotatory parts, which is the part that is rotating or transmitting power, generally made from different grades of steel. So, for example, one of the popular grade of steel, just to give you an idea of in industry how we do it, that we use AISI 1045 steel. This steel is used for shaft manufacturing. Used for shaft manufacturing. The popular grade steel AISI, American International Standard Institute, AISI 1045, is the steel used for only, is properly used for shaft manufacturing. Now this is again a steel, and it's a ductile material. So this is a very hard steel. Its surface is very hard. So it's very difficult to penetrate through that surface. So these are all ductile materials in which from machine elements are generally made from. Next concept is called resilience. Now resilience and the toughness as generally the same meaning, that is the area under the curve, but the idea of resilience is the energy absorbed up till elastic limit. So this is the area. So you cannot see the color. So if I use a different color, just give you an idea that this is the this is the this is the area which is actually I just filling with yellow. This is called the modulus of resilience. Clear? And the
the whole energy, which is the total energy, this is called the modulus of toughness. That is the only difference. So you should know about resilience or modulus of resilience. Modulus of resilience is the area under the curve in the elastic region or the area under the curve up till elastic limit. Whereas the total area under the curve up till fracture is called the modulus of toughness. That is mostly people got confused even after engineering. So this is one of the question in interviews that was different between resilience and toughness. So resilience is the energy ability of material to absorb energy up till elastic limit, whereas the toughness is the ability of material to absorb energy up till fracture. That's why we need to understand this. If you have any question, you please ask. You can open your mic and ask the question. Okay, now moves towards the quickly through these loads because onward we have to actually see how this load applies. So stress, as you know from mechanics of material, is nothing but load per unit area. And I think we do not have to go into the detail because you know you have studied a lot in mechanics of materials. So units are generally used as megapascal or gigapascal, but there are alternative units used. So just I'll give you a units review of units here. So you will actually have a lot of practice and mechanics of material for units, but just give you an idea that stress is generally written in megapascal in SI units, or if you are using the FPS system, which is British system, you have to use PSI. Clear? Or sometimes use KSI. So PSI pound per square inch and KSI is kilo pound per square inch. And stress are generally megapascal or gigapascal. This is the SI system. So because as I told you in the class, we actually we have a history of adopting both culture, that is the American culture and British culture. So SI system are mostly American based units, although it's called as System International, but these units are actually derived from America. So USA so that is generally considered as the US oriented units, and FPS, which is a British system, is generally used as British units. Because and Pakistan we use both units. Most the books that are written by British, they use mostly PSI, KSI, pounds, inches, feet, and if you do the books written by Americans or pro-Americans like Asians and all these those people who are actually more influenced than not in Asia practically, but the people, the countries who are more influenced by USA or have been you can say reign by USA, they use the units which are generally System International. So in Pakistan, because we have a mixed of units, so you know both of the units. In paper, I will not go into PSI or KSI because I think it's become difficult for you to convert those units, but you should understand this. That is my idea. So if somebody units came, so you have a practice of conversion these units with each other. And in real world, in industry even, we use again the mixed units. Even in our industry, we use FPS system, we use SI system in combined. So you at least you have understanding of both units or conversion between them. So if I say you 1 megapascal equals to, let's say for example, just to give an idea, 1 megapascal is equals to how many PSIs? So this is one thing that you need to understand. Or 1 megapascal equals to how many KSIs? Okay. So I don't know the it's like 447. I don't know the exact number, but you should exactly know what is equals to. So for example, you can say that 0.1 megapascal is I think so equals to 14.7 psi. So 1 megapascal is roughly 147. I think 1 megapascal is 147, but you have to confirm it. 147 psi. These are types of conversion that these are the standard conversions, and you should actually have a, by using practice you can do that. Another important thing is about units, that when you design, especially when you are designing machine elements, generally in Pakistan or mostly in the world, the measurements or dimensions are generally taken in millimeter generally, and throughout that designing, when I go through the different topics, we will find dimensions in millimeters. So
most people got confused by the millimeter. So one of the convention that is also written here, that 1 megapascal is also equals to 1 Newton per millimeter square. So if you have answer of, let's say, 20 megapascal is equal to 20 Newton per millimeter square. So that is the idea that you need to understand. Do not confuse with those units. 1 megapascal equals 1 Newton per millimeter square, and if you write 1 gigapascal, that is equals to 1000 Newton per millimeter square. So these are the conversion within SI system. Clear? So at least you have idea of all these units, because what happens if you use a wrong unit, you end up with a dimension that is actually not imaginable. For example, throughout teaching this course for last 8 or 9 years, I think so, now it's 11th time actually. So in last 8 or 10 years, I have seen that the people who do not develop understanding of these units, they end up with the dimensions of the, let's say, for example, if you have to design the bolt. So bolt, the major design of bolt is the diameter of the bolt, which is nominal diameter of bolt on which the threading has been made. So anyone can tell me how bigger a bolt dia could be? Anyone? मतलब बड़ा से बड़ा बोल्ट कितने डाया का हो सकता है? Anyone? मेरी आवाज आ भी रही है या मैं अकेला बोल रहा हूँ? आ रही है सर। आ रही है। कितना बड़ा डाया हो सकता है? किसने देखा बोल्ट? देखा हुआ रियल वर्ल्ड में किसी ने? नट बोल्ट देखे हुए कि नहीं देखे हुए? भाई मेरे नट बोल्ट देखे हुए किसी ने कि नहीं? अभी क्लास में तो क्लास में बताता सर। हाँ, कितना डाया होता है अंदाजन? अंदाजन बता दो, मैं कौन सा कह रहा हूँ, भैया जी बताओ, अंदाजन बताओ कितना डाया होता है? आम बोल्ट इस्तेमाल करते हैं 10 का बोल्ट क्या होता है? 10 का बोल्ट सुना कभी? 8 का बोल्ट, 10 का बोल्ट, 12 का बोल्ट, 14 का बोल्ट, क्या होता है वो? हाँ, मैक्सिमम डाया शैंक का डाया कम होता है, लेकिन 12 mm, 14 mm, 16 mm यही होगा ना? बड़े से बड़ा बोल्ट जो इस्तेमाल होता है ना इंडस्ट्री में, बड़े से बड़ा, जो बड़ी बड़ी आप कह लें कि मैंने एक टरबाइन जो वाटर टरबाइन देखी थी, फ्रांसिस टरबाइन, जो कि बंगला पावर स्टेशन थी, उस पर जो बोल्ट यूज हुआ वो था 50 mm का था, 50 mm डायमीटर। 50 mm का बोल्ट बहुत बड़ा होता है। गाड़ी में बड़े से बड़ा जो बोल्ट इस्तेमाल होता है ना, वो 21 का होता है, 22 का होता है, 24 का होता है, सॉरी, वो 24 वाला बोल्ट होता है वो एक्सेल में इस्तेमाल होता है। गाड़ी में भी 24, और वो भी एक ही जगह पे इस्तेमाल होता है। गाड़ी में मोस्टली 10, 12, 14 और 18 भी कम यूज होता है, 10, 12, 14 गाड़ी की पूरी असेंबली में इस्तेमाल होते हैं। 14 का मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होता है। और एक स्टूडेंट ने डायमीटर निकाला हुआ था 5 मीटर। अब मैं आपको सिर्फ इमेजिन करने के लिए बता रहा हूं, 5 मीटर, 5 मीटर का मतलब होता है 5000 मिलीमीटर, यानी कि 50 मिलीमीटर तो बड़े 100 मेगावाट टर्बाइन में लगे होते हैं। और उससे वजह क्या थी? वजह गलती, मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रहा हूं, ये गलती आप भी कर लेंगे। अगर आपने यूनिट की कन्वर्जन सही ना की, तो जो आपका आंसर आएगा अल्टीमेटली, डायमेंशन जो आएगी, वो मीनिंगलेस डायमेंशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बोल्ट का डायमीटर 5 मीटर आ रहा है मिसाल के तौर पे, तो ये गलत है। ये 5 मीटर का मतलब 5000 मिलीमीटर, इसका मतलब अगर बोल्ट ही तकरीबन आपका कोई कमरे के दौड़ के साइज का होगा, ये हो नहीं सकता। ठीक है, इसलिए एक चीज जो आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने से समझ आएगी वो ये है कि आपकी जो डायमेंशंस आएंगी अल्टीमेटली, जो हम अभी निकालेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, वो ऐसी होंगी जो आप इमेजिन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इमेजिनेबल ही नहीं होंगी, मतलब ऐसी हो जो आप अंडरस्टैंड भी करें कि यार हाँ ये हो सकता है, अब ये तो नहीं हो सकता। इस तरह ये चीज मैं आपको पिन पॉइंट करना चाहता हूँ। ओके ओके, नेक्स्ट, ये भी आपको पता है, टेंसाइल स्ट्रेस, लोड पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, then compressive stress, again the load is on inward, we have a compressive stress। मेरा नहीं ख्याल मुझे इसमें बहुत डीप जाने की जरूरत है, आप ऑलरेडी काफी दफा इसको पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, ये प्रॉब्लम है, आई थिंक तो क्लास में मुझे याद पड़ा, मैंने करवा दिया था। ये करवाया था कि नहीं? यस सर, करवा दिया। करवा दिया था। अच्छा जी, इसके बाद ये भी हमने देख लिया था, ये वाला क्लास में, एग्जाम्पल नंबर 6।
यस ये सर। वाला आपने क्लास में देखा था। पिस्टन वाला, इसका मैं आपको आइडिया दे देता हूं। अगर आप गौर करें, इसमें सिर्फ एक फर्क है, वो है प्रेशर। ठीक है, ये इसमें आपको फोर्स नहीं दी हुई, यहां पे आपको दिया हुआ था लोड। इधर गया, ये आपको दिया होता है यहाँ पे लोड। ठीक है, न्यूटन की फॉर्म में। अब यहाँ पे आपको लोड नहीं दिया हुआ बल्कि एक्सटर्नल। अब स्टीम जो होती है वो क्या होती है, एक एक्सटर्नल प्रेशर है। एक्सटर्नल, ये निशानी है हमेशा आपने। एक्सटर्नल जो कंपोनेंट होगा वो फोर्स को जनरेट करेगी। तो प्रेशर आपके पास है 0.9 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब इसको आपने फोर्स में कन्वर्ट करना है, तो फोर्स में कैसे कन्वर्ट होगा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर एरिया। एरिया क्या है हमारे पास, जब अब एरिया आपने कौन सा लेना है, पिस्टन का। पिस्टन के ऊपर स्टीम लग रही है, देखिए 400। तो ये आपके पास होगा, मैं जैसा कोई सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, सॉल्व आप कर लीजिएगा। दैट इज द सॉरी, प्रेशर इज 0.9। अब न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में से कन्वर्ट नहीं कर रहा, इसीलिए मैं इसको मिलीमीटर स्क्वायर में लिखूंगा। तो ये होगा, एरिया क्या होगा, चूंकि ये डायमीटर होता है तो होगा π/4 इंटू 400 स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा ये एक्चुअली में आपकी फोर्स होगी। ठीक है, बाकी रेस्ट जो है ना ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें आपने रॉड के अंदर निकालनी है, कंप्रेशन का रॉड निकालना है। कंप्रेशन रॉड का मतलब ये है कि आपने डेल्टा एल निकालना है बेसिकली। आपने जो है वो डेल्टा एल निकालना है इन कंप्रेशन। ठीक है, तो मेरा ख्याल है हम पहले भी कर चुके हैं, तो आप ये उम्मीद निकाल लेंगे। अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शीयरिंग स्ट्रेस एंड शीयरिंग स्ट्रेन का। ये भी आपने होपफुली पढ़ लिया मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में, इसको भी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जो शीयरिंग स्ट्रेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लोड और एरिया का आपस में पैरेलल होना जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे, मेरे पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, और मैं इसे पुल कर रहा हूँ लेकिन दरमियान में एक रिवेट लगी, दिस इज कॉल्ड रिवेट। रिवेट इज द मोस्ट कॉमन यूज फैब्रिकेशन एलिमेंट। सो रिवेट लगी हुई है और मैं इसको पुल कर रहा हूँ, तो ये रिवेट, ये लाइकली चांस ये है कि रिवेट यहां से कट जाएगी। तो जब यहां से कटेगी तो ये एरिया और ये फोर्स आपस में पैरेलल है, इस रिवेट में शियर होगी बेसिकली। अगर रिवेट यहां से टूटती इस तरह, तो फिर इसमें टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से या कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से फेलियर होता। लेकिन ये जब का मोस्टली चांस है कि जब कट जाएगी यहां से, तो कटेगी, तो इसका मतलब ये कि इसमें शियर स्ट्रेस हो रही है। तो शियर स्ट्रेस के लिए ऑल द फार्मूला इसका भी वही होता है, विच इज लोड पर यूनिट एरिया। बट थोड़ा सा फर्क ये है कि एरिया क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ये एक फर्क होता है, और ये आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें भी कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब हमने ये देखना होता है कि शेयरिंग एरियाज कितने हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये प्लेट आपके पास, ये रिवेट है, एक रिवेट के अंदर अब तीन प्लेट्स हैं, 1 2 और 3। ठीक है, और इसको हम लैप जॉइंट भी कहते हैं, डबल स्ट्रैप लैप जॉइंट। इसके अंदर एक एरिया, चूंकि यहाँ पे दो प्लेट मीट हो रही है, तो एक एरिया ये शेयर हो सकता है, और दो प्लेट्स यहाँ पे मीट हो रही है तो एक एरिया ये शेयर हो सकता है। तो प्रैक्टिकली इसके अंदर दो एरियाज आ जाएंगे जो कि शेयर हो सकते हैं, पर रिवेट की बात करें। ठीक है, पर रिवेट आपको जिस आप रिकॉर्ड करें यहाँ पे बनाया भी हुआ है कि दो एरियाज जो है वो यहाँ पे शेयर होने का चांस मौजूद है। तो दिस इज कॉल्ड दी। तो अब आपने एरियाज देखने, वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से अगर हम एक प्लेट है उसमें ड्रिल करने की कोशिश कर रहे हैं या पंच कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी स्ट्रेस जनरेट होगी, उसका जो एरिया होगा दैट इज पैरेलल। और वो जो शेयर एरिया होगा, अगर थोड़ा सा इसको इमेजिन करें, तो मैं अगर इसको क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ करूं, ये पंच है, तो दैट सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड पाई डी या 2 पाई आर। आपको याद है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और टी इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो ये कौन सा एरिया बनेगा, ये बेसिकली इसके अंदर वाला एरिया बनेगा, ये वाला, ये वाला। तो ये एरिया जो अंदर वाला है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये बेसिकली पैरेलल है फोर्स के। पंच आ रहा है ऊपर से ही, देखें फोर्स इस तरह, और एरिया भी इसके पैरेलल है। तो ये इसमें जो एरिया विल बी डिफरेंट, नाउ इट इज पाई डी टी अगर पंच हो या ड्रिल हो, लेकिन इसके अंदर भी शियर स्ट्रेस जनरेट होगी, और दैट इज एरिया इज पाई डी टी। अगेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो आपके पास एरिया है, फोर्स और उसकी ओरिएंटेशन आपस में पैरेलल होनी चाहिए।
अच्छा जी, फिर आता है कोर कॉन्सेप्ट जिसको हम टॉर्क कहते हैं, और अगेन आपको ये भी पता है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। किसी भी मेटल में जब हम रोटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं, रोटेशनल फोर्स होती है, इसको टॉर्क भी कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल फोर्स। तो बॉडी के अंदर एक एंगुलर डिफॉर्मेशन आती है, अगर बॉडी एक साइड से फिक्स है तो एंगुलर डिफॉर्मेशन आती है, दैट इज कॉल्ड दी टॉर्शनल स्ट्रेस। टॉर्शनल स्ट्रेस टॉर्क से निकलता है टॉर्शनल, लेकिन मजे की बात यह है जिस एरिया में अप्लाई होती है वो लोड के पैरेलल होता है, इसलिए ये भी शेयर की एक नेचर है, यानी कि जो टॉर्शनल स्ट्रेस है बेसिकली शेयर की ही स्पेशलाइज्ड टाइप है। इसलिए ये में रखना है कि शेयर स्ट्रेस जो है बेसिकली ये जो है टॉर्शनल स्ट्रेस इज द शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन है वो मेरा नहीं ख्याल आपको बताने की जरूरत है, यू ऑलरेडी नो दिस रिलेशन, ये हम बार बार यूज करेंगे अपने डिजाइन के अंदर, लेकिन दैट इज फॉर अ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस टाउ ओवर आर इक्वल टू टी ओवर जे इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल। ये वो स्ट्रेस का रिलेशन है जो कि टॉर्जन के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये बड़ा पॉपुलर रिलेशन है। इसके अंदर जो टाउ है दैट इज शियर स्ट्रेस या टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, आर इज द रेडियस, टी इज द टॉर्क, जे इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जी इज द मॉडल ऑफ रिजिडिटी, थीटा इज द एंगुलर डिफ्लेक्शन, एल इज द लेंथ। ठीक है, तो ये सारे के सारे अगर हमारे पास मौजूद है जो कि एक शाफ्ट या किसी भी रॉड में होते हैं, तो हम यहाँ से डिफरेंट पैरामीटर जो कि हम अभी देखेंगे भी। ठीक है, और सो लेट्स से हम ये अब देखते हैं। सो वी हैव अगर हम यहाँ पे इसको इसी को यहीं पे सॉल्व करें, सो व्हाट वी हैव इज अ शाफ्ट, इसकी हमारे पास पावर है 100 किलोवाट पावर जनरेट कर रही है, आरपीएम है हमारे पास 160। ठीक है, फाइंड द सुटेबल डायमीटर ऑफ वो, हमने शाफ्ट तो हमने डी फाइंड करना। ठीक है, फॉर द शाफ्ट द मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस टाउ अलाउएबल इक्वल्स टू 70 मेगा पास्कल। तो हम क्या करेंगे, हम वही सिंपल रिलेशन, अब हमने ये डिजाइन का सिंपल सा प्रॉब्लम है, आपको ये भी कह सकते हैं डिजाइन है शाफ्ट। डिजाइन है शाफ्ट का ज्यादातर मतलब होता है शाफ्ट का डायमीटर निकालना, चंद केस में शाफ्ट की लेंथ भी निकालनी पड़ती है, लेकिन मेरा ख्याल है आपके डीएमई 1 के अंदर शाफ्ट का जब भी डिजाइन आएगा तो सिर्फ डायमीटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है डिजाइन है शाफ्ट। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे लिखा फाइंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, तो ये एक ही बात है। सो अगर आप रिलेशन देखें तो वी हैव टाउ ओवर आर इक्वल्स टू टी ओवर जे। आपको बता सकता है कि इसके अंदर जो डायामीटर है शाफ्ट का वो किन पैरामीटर्स में आएगा? एनीवन? हम्म, जी जी सही कह रहे थे, कौन बोला था? बोले हैं या बोला, सही बोला था? जे में आएगा, और कहीं आएगा इसके अलावा? जे में आएगा और आर में आएगा, आर भी तो रेडियस ही है ना। जे में आएगा और आर में आएगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा, अगर मैं इसको सिंपली डिजाइन की फॉर्म में लिखता हूं, टाउ अलाउएबल डिवाइडेड बाय डी बाय 2 इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाय पाई बाय 32 d4। ठीक है, पाई बाय 32 d4। अच्छा जी, अब आप गौर करें जो टॉर्क है, ये हमें तो पावर दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, पावर इक्वल्स टू 2 पाई एन टी बाय 60। तो यहां पे टी क्या होगा, 60 पी ओवर 2 पाई एन। ठीक है, तो 60 इंटू, अब पावर को आपने किस में कन्वर्ट करना है, किलो वॉट में है, तो इससे आपको कन्वर्ट करना है इंटू वॉट्स। 60 टाइम्स 10 टू 10 पावर 3, सॉरी 100 टू 10 पावर 3, सॉरी 100 into 10 power 3 divided by 2 into pi, and RPM is 160. So what will be the answer? आप कैलकुलेटर निकाले, साथ साथ करें इसके साथ साथ जिस समय कर रहे हैं। 60 into 100 exponent 3 divided by 2 pi into 160. The answer is 595968
0.3 न्यूटन मीटर. दिस इज द टॉर्क अप्लाइड ऑन दैट शाफ्ट. ये शाफ्ट के ऊपर ये टॉर्क अप्लाई हो रहा है और ये इतनी पावर ट्रांसमिट कर रही है. सर हमने आरपीएम को चेंज करना सर. जी, आरपीएम चेंज नहीं होंगे सर. आरपीएम को हमने ये 60 का मतलब यही है, हमने आरपीएम को ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया हुआ. अगर ये 60 का मतलब है कि हमने सेकंड में कर दिया. अगर आप ये 60 ना लिखे फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, अगर ये 60 ना लिखे तो फिर आपको डायरेक्टली पहले आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डालना पड़ेगा. मान चुके 60 लिख दिए, 60 बेसिकली इसी कन्वर्जन यूनिट है, तो ये इसी तरह आएगा. ठीक है, अब आप गौर करें, इसको जरा सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, ये डी से कैंसिल, ये क्यूब रह जाएगा. अच्छा जी, और आपके पास ये 216 रह जाएगा. ये बनेगा टाउ अलाउएबल इज इक्वल्स टू, इसको मैं ऊपर ले जाए 16t ओवर पाई डी क्यूब. ठीक है, डी क्या होगा, जो हमारा पर्पज है वो आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ, सॉरी क्यूब रूट ऑफ, मेरा ये गलत हो गया, क्यूब रूट ऑफ 16t ओवर पाई टाउ अलाउएबल. किसी को कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ ले. फार्मूलाज कभी भी चेंज नहीं होंगे, फार्मूलाज वही यूज होंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लेकिन अब आपने इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द स्ट्रेस, अब आपने क्या फाइंड करना है, डायमेंशन. अब जो डायमेंशन आएगी यहां पे हम वो देखेंगे क्या वो इमेजिनेबल है कि नहीं. ठीक है, तो हम यहां पे डाला क्यूब रूट 16 इंटू 5968.3 डिवाइडेड बाय पाई. टाउ अलाउएबल इज 70 मेगा पास्कल. अब देखें हम जहां जहां चल रहे हैं वो मीटर में चल रहे हैं. देखिए ये भी मीटर है. ठीक है, और इसलिए यहां पे जो टाउ अलाउएबल डालेंगे वो हम मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में डालेंगे, तो 10⁻⁶. अगर यहां पे आप खाली 70 लिख देंगे तो ये आंसर इतना बड़ा आएगा कि वो आप इसको इमेजिन ही नहीं कर सकते. अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है. 16 इंटू 5983.8 सॉरी 68.3 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 70 एक्सपोनेंट 6. और इसका हमने लेना है क्यूब रूट. अब देखिए आंसर आया. अब आंसर क्या आ रहा है ये देखिएगा जरा गौर से. इसका आंसर आ रहा है, आप कैलकुलेशन कर रहे हो साथ साथ, आंसर आ रहा है 0. वेरी गुड, 0.076 कह लेते हैं. ये क्या है, मीटर. अब यहां पे 76 मीटर आ जाए तो गलत हो जाएगा. तो कितने मिलीमीटर हुआ ये, 76 मिलीमीटर. अब 76 मिलीमीटर जो है तो एक इमेजिनेबल है. हालांकि ये 76 मिलीमीटर बहुत बड़ी शाफ्ट होती है. ये शाफ्ट तकरीबन होगी जो और 100 किलोवाट बहुत ज्यादा पावर है. 100 किलोवाट अगर आप देखें ना तो तकरीबन 0.1 मेगावाट बनती है. तो ये बहुत ज्यादा पावर है. 100 किलोवाट होती है वो तकरीबन कोई, अगर आप मैं से जरा आपको इमेजिन करके बताऊं, तकरीबन 134 हॉर्स पावर होती है. 134 हॉर्स पावर की गाड़ी भी नहीं होती, गाड़ी भी इससे कम होती है 1300 सीसी. ये काफी हैवी शाफ्ट है. ठीक है, काफी बड़ी शाफ्ट है. तो इसका भी जो डायमीटर आया है वो सिर्फ एमएम्स में आया है, 76 mm. ये आपको समझाने की बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूं. अच्छा, नेक्स्ट जो है ये मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर दूं. ये आपको स्लाइड्स तो नहीं मिल सकती, स्लाइड में मैं लिख रहा हूं, ये मैं बाद में ये सारा अरेज कर दूंगा, लेकिन आपको और वीडियो लेक्चर में ये सब कुछ जो मैंने लिखा है वो मिल जाएगा. अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो है एक और एग्जांपल है. अब मेरा ख्याल है मैं अब इसको करवाऊंगा नहीं, आप इसको खुद कर लेंगे. द स्टील शाफ्ट. अच्छा, अब ये डिजाइन का प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये उल्टा प्रॉब्लम दिया प्रैक्टिस करने. ये इसका डायमीटर ऑफ शाफ्ट है. ठीक है, ये लेंथ ऑफ शाफ्ट है. ठीक है, रिजिडली हेल्ड एट वन एंड एंड हैंड व्हील ऑफ 500 mm की टू अदर एंड. अब ये 500 mm का इस तरह एक शाफ्ट है, ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है. एक तरफ से फिक्स किया हुआ है, एक तरफ से एक व्हील लगाया हुआ है.
उस व्हील के साथ क्या किया हुआ है, एक हैंडल है, ठीक है। इस व्हील का डायमीटर है 500 mm, ये शाफ्ट का डाया है 35, इसकी लेंथ है 1.2 मीटर। मॉडल रिजिडिटी जो जी दिया हुआ है इसका, वो दिया हुआ है 80 गीगा पास्कल। आपसे पूछता है व्हाट लोड अप्लाइड टेंजेंट टू द रिम ऑफ द विद टॉर्शनल स्ट्रेस ऑफ 60 मेगापास्कल। तो आप बेसिकली पूछ के रहा है वो आपसे फॉर्मूला, अगर आप देखें तो पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो टाउ अलाउएबल ओवर डी बाई टू इक्वल्स टू, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय पाई बाय 32 d4। अगर आप इसे बहुत गौर से देखें, इसमें आपको एक चीज नजर आएगी, वो क्या है कि ये जो आर है ये व्हील का, यानी कि जो आपके पास व्हील लगा हुआ है, हैंड व्हील, ये उसका आर है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स है शाफ्ट की, ये आपने निकालना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, फोर्स। और देखिए टाउ अलाउएबल भी आपके पास डी भी है, रिम रेडियस भी है, और तो ये इतना मुश्किल बात नहीं है, ये आप आराम से यहां से आपने ये निकाल लेना फोर्स। सेकंड उसने पूछा हाउ मेनी डिग्रीज विल द व्हील टर्न, तो आप कह सकते हैं, आप कर सकते हैं टाउ ओवर आर इज इक्वल्स टू जी थीटा बाय एन। आपको इस फॉर्मूले की ब्यूटी पता है कि आप तीनों को किसी को भी आपस में क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने क्या निकालना है, थीटा। दिस इज व्हाट वी नीड टू रिक्वायर। आपको हर चीज पता है इसके अंदर, आर भी पता है। आर अब ये ध्यान रखना, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो ये वाला आर है ये शाफ्ट का है, जेन में रखना है, ये वाला आर शाफ्ट का है। जो फैक्टर इधर आएगा ना टी में यानी कि टॉर्क में, वो एक्सटर्नल होगा, जो यहां पे आएगा वो इंटरनल होगा। मिसाल के तौर पे शाफ्ट आपकी एक्चुअल डिजाइन फोकस है, ठीक है, और जो उस पर फोर्स लग रही है वो बाहर से आ रही है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो टाउ ओवर आर है, ये आर हमेशा आपका इंटरनल कंपोनेंट का डाया होगा, इंटरनल कंपोनेंट का डाया होगा, यानी कि शाफ्ट हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है, इंटरनल कंपोनेंट का डाया होगा। और जो टॉर्क है ये एक्सटर्नल चीज है, एक्सटर्नल पैरामीटर है, ये बाहर से उस सिस्टम में आएगा। इसमें फोर्स भी बाहर से हो सकती है, और जो भी इस तरह आप कह सकते हैं, तो इस तरह आप इसको इजीली सॉल्व कर लें, ठीक है। ये वो प्रॉब्लम मैंने सजेस्ट किए हुए हैं जो आपने खुद करने हैं, कुछ मैंने इसमें से करवा भी दिए हैं, बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप गो थ्रू हो इनमें प्रॉब्लम्स में से। ये मैंने सेलेक्टिव प्रॉब्लम देने का मकसद सिर्फ ये है, देखें 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 8, 10 और 16, इनको देने का मकसद ये है कि मैं अब जैसे 4.1 से लेकर आप आगे कर लें या पूरे कर लें, आप इसको गो थ्रू जरूर करें। मैं नहीं कहता आप सारे सॉल्व करें बैठ के, लेकिन आप गो थ्रू जरूर करें। आपको बुक देने का मकसद ये है, आपको जब पेपर में प्रॉब्लम आएगा, देखिए वो जो मैं प्रॉब्लम बना के दूंगा वो आपको पता है, वो ओपन बुक एग्जाम है, वो बुक में से नहीं होगा, बट बुक के ही कॉन्सेप्ट हो सकता है 4 प्रॉब्लम्स को मर्ज करके मैं एक प्रॉब्लम दे दूं, ठीक है। या मैं हो सकता है एक प्रॉब्लम में चीज पूछी हुई मैं उसे उल्टी चीज पूछ लूं, बुक आप पर मौजूद होगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ना वो और अच्छे तरीके से चीजों की समझ आएगी। मेरी कोशिश ये होगी एक एक प्रॉब्लम जो मैंने पेपर में दिया हुआ है, मैं आपको उसके साथ साथ जो मैं लेक्चर में करवाऊंगा, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको साथ साथ एक प्रॉब्लम का जो मैं पेपर में देता हूं वो मैं आपको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा क्लासरूम के ऊपर, ताकि आप उससे भी गो थ्रू हो, आपको अंदाजा हो कि बुक में कैसा प्रॉब्लम है और पेपर में कैसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये ना हो कि आपके सर कराया तो कुछ हो रहा है, दिया कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं है। मैं दूंगा वही जो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन बल कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होगा, और आपका कह सकते हैं कि जो आपका प्रॉब्लम एग्जैक्टली डेफिनेटली वो नहीं हो सकता। अब तो अब लास्ट टाइम तो क्लोज बुक होता था, अब तो है भी ओपन बुक, तो अब तो प्रॉब्लम थोड़े से टफ होंगे, लेकिन बल इतने टफ नहीं होंगे कि आप कर ना सके, तो एक मीडियम लेवल की जो है ना वो उसमें होगी। कोई सवाल हो तो जल्दी से कर लें। हम वी आर नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एलिमेंट। एनी क्वेश्चन यू हैव सो प्लीज आस्क। इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज हो तो मुझे। ये 3 वीक्स की तमीज बांधने का मकसद ये था कि जब हम पहला डिजाइन करें, डिजाइन ऑफ की, तो आपको आइडिया हो कि डिजाइन का मतलब क्या होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, और हमने ये कर भी लिया कि की का मतलब, सॉरी, डिजाइन का मतलब ये है टू फाइंड द डायमेंशंस, सेफ डायमेंशंस विच विल नॉट फेल ड्यूरिंग ऑपरेशन। ये मकसद है बनाई। तो
जहां भी आप डिजाइन का वर्ड सुनेंगे वहां हम एक ही काम करेंगे, वो क्या करेंगे, वो साइजेस निकाल रहे होंगे, डायमेंशन निकाल रहे होंगे। हमारा काम ही यही है। आगे हम अभी तो पहले हमने शाफ्ट के ये थीटा और ये निकाले ना, आगे जितने प्रॉब्लम्स होंगे उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, डायामीटर या साइज या डायमेंशन। जो फर्स्ट एलिमेंट जिसको हम चूज किया हमने, जो कि सिंपलेस्ट तरीन मशीन एलिमेंट होता है, उसे कहते हैं की। और जो की जो होती है, ये वो वाली जो ताले वाली की नहीं होती, ये मशीन की होती है और ये बहुत सारी असेंबली में इस्तेमाल होती है। सो बेसिकली की क्या चीज है, इट्स अ पीस ऑफ माइल्ड स्टील इंसर्टेड बिटवीन अ शाफ्ट एंड अ हब ऑफ अ पुली नॉट टू कनेक्ट टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दी रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। तो आइडिया ये है बेसिकली कि जब आप किसी शाफ्ट पे कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट चढ़ाते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट से क्या मुराद है, आप पावर ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो पावर ट्रांसमिट किससे होती है, जैसे यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, स्प्रॉकेट, इसको आप गरारी भी कहते हैं देसी जबान में, स्प्रॉकेट। अब स्प्रॉकेट को शाफ्ट पे चढ़ाना होता है, माउंट करना होता है। इसके माउंटिंग के और भी मेथड हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखिए यहां पे एक छोटा सा, अगर मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करता हूं जूम हो जाए, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहां पे आपको कीवे नजर आएगा, इधर ये देखें, ये आपको कीवे नजर आ रहा होगा, और ये की है जो आपको उभरी हुई नजर आ रही है, ये बेसिकली क्या है, दैट इज की। अब इसका फायदा क्या है, जब हम इसे इस स्प्रॉकेट को यहां पे धकेलेंगे इस तरफ, तो क्या होगा कि ये की इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। और इसका जो एडवांटेज होगा वो क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर लेट्स से चेन चढ़ाते हैं, तो हमारा आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि पावर इस शाफ्ट के थ्रू ट्रांसमिट हो, तो ये ऊपर से स्लिप नहीं करेगी, यानी कि जो ऊपर स्प्रॉकेट है ये शाफ्ट के ऊपर से स्लिप नहीं करेगी, बल्कि शाफ्ट के साथ उसको साथ घुमाएगी, उसका पार्ट बन जाएगी। और ये मुमकिन होगा किसकी वजह से, की वजह से। अगर की को हम निकाल दें और आपके सर की नहीं मैंने यूज करनी, तो वैसे करो, उसका नुकसान क्या होगा, इसके फिर और ज्वाइनिंग तरीके हैं। एक तरीका इसका ये हो सकता है कि मैं की नहीं बनाता, बल्कि मैं यहां पे वेल्ड कर देता हूं कुछ कुछ, ये भी एक तरीका हो सकता है दोनों को जोड़ने का आपस में। वेल्ड के दो तीन नुकसान है। एक तो नुकसान ये, जब आप वेल्ड करते हैं किसी भी पार्ट को, तो उसके अंदर एक जो उसकी हाइंड साइड है वो क्या है, उसके अंदर रेजिडुअल स्ट्रेसेस आ जाती हैं, क्योंकि वेल्ड क्या करता है, वेल्ड टेम्परेचर को बहुत हाई कर देता है उस लोकलाइज रीजन में, मेल्ट करता है उसको मेटल को, जिसकी वजह से उस लोकलाइज पॉइंट के ऊपर क्या होता है, स्ट्रेसेस आ जाती है, जिसकी वजह से मटेरियल की स्ट्रेंथ में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कम हो जाती है। दूसरा नुकसान ये है कि आप स्प्रॉकेट को दोबारा निकाल नहीं सकेंगे, आपको वेल्ड काटने पड़ेंगे। जब आप वेल्ड काटेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास ये शाफ्ट और ये स्प्रॉकेट भी खराब होगी। इसीलिए आप कभी देखें कि ईज ऑफ असेंबली और डिसअसेंबली मशीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। एक किया की पूरी गाड़ी फेल हुई, किया मोटर्स है जिनकी स्पोर्टी भी अब आजकल आती है, उनकी पूरी एक गाड़ी फेल हुई थी पाकिस्तान में, दैट इज किया स्पेक्ट्रा। आपको बता सकता है उसकी फेलियर की बड़ी वजह क्या थी? उसकी फेलियर की बड़ी वजह आपको शायद कम लोगों को पता हो, उसकी फेलियर की बड़ी वजह डिफिकल्टी ऑफ डिसअसेंबली थी। उसका जो हेड था, जिसको सिलेंडर हेड कहते हैं, जो ऊपर जिसको वाल्व लगे होते हैं, वो बॉडी, वो सिलेंडर जो आपका सिलेंडर ब्लॉक होता है उसके साथ वेल्डेड था, उसको आप खोल नहीं सकते थे। तो जब इंजन में प्रॉब्लम आ, उनका क्लेम ये था, किया का ये क्लेम था कि ये गाड़ी 30 साल तक भी इसका हेड खोलने की जरूरत नहीं है, ये गाड़ी में प्रॉब्लम आएगा ही नहीं किसी सूरत में। हुआ ये कि जब वो गाड़ी पाकिस्तान में आई, और जब पाकिस्तान में वो गाड़ी आपने कुछ जगहों पे देखी होगी, उसका इंजन स्वैप हुआ होता है या इंजन में ऑल्ट्रेशन हुई होती है, वो एक्चुअल इंजन में गाड़ी नहीं है। शायद ही आपको किसी के पास हो, भाई मुझे उम्मीद नहीं है किसी के पास होगी। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि जो सिलेंडर हेड था और जो सिलेंडर ब्लॉक था, वो आपस में उन्होंने वेल्ड कर दिए थे। उसकी वजह से ना तो आप पिस्टन निकाल सकते थे, ना ही आप उसका वॉल निकाल सकते थे, ना ही मेंटेनेंस कर सकते थे। और जब वो पाकिस्तान में आई, क्योंकि कोरिया में टेम्परेचर कम था, जब पाकिस्तान में आई तो पाकिस्तान में टेम्परेचर थोड़े ज्यादा थे, तो वो उसके वॉल हीट अप हुए, उसकी चीजें हीट अप हुई, तो वो फेल होना शुरू हो गया। तो जब मैकेनिक्स ने वो खोलने की कोशिश की तो उसका हेड ही नहीं खुलता था, क्योंकि वेल्ड हुआ होता। तो वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में बुरी तरह फेल हो गई। हालांकि गाड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम था, वो क्या था, उसकी ईज ऑफ असेंबली और डिसअसेंबली नहीं थी।
तो मशीन के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ईज ऑफ असेंबली एंड ईज ऑफ डिसअसेंबली। आप गौर करें, आपकी ऐसी बाइक हो जो खोल ना सके कोई, तो आप कहेंगे कौन सी बाइक है कि खराब हो गया मैं खोल नहीं सकता, तो आप देखें आप पूरी बाइक को डिसअसेंबल कर सकते हैं सिवाय फ्रेम के। फ्रेम उसका फिक्स होता है, वो पक्का बना होता है, इसको एच फ्रेम कहते हैं। उस पर आप इंजन पूरा सेपरेट कर सकते हैं, आप चेन स्प्रॉकेट लदा कर सकते हैं, आप चेन लदा कर सकते हैं, आप पूरा गियर बॉक्स खोल सकते हैं, आप क्लच प्लेटें खोल सकते हैं, आप फ्लाई व्हील खोल सकते हैं, आप एक एक पार्ट अलग कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि असेंबली करना, उसकी मेंटेनेंस करना आसान होता है। तो बेसिकली की का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपने कोई भी एलिमेंट शाफ्ट में माउंट करना हो, जरूरी वो स्प्रॉकेट हो, वो गियर भी हो सकता है, वो पुली भी हो सकती है, वो स्प्रॉकेट भी हो सकती है, और वो कोई और एलिमेंट भी हो सकता है। जिस तरह रोटेट करना है शाफ्ट के ऊपर, उसको होल्ड करने के लिए सबसे आसान चीज या सबसे सबसे जबरदस्त चीज जो इस्तेमाल होती है, दैट इज दी की। ये वो की है जो कि आपको यहां पर, कल मेरे पास क्लास में गियर है, गियर शाफ्ट में माउंटेड है, मैं आपको क्लास में वो गियर भी दिखाऊंगा, एक्चुअली वो की दिखाऊंगा जिसके ऊपर ये माउंट होती है। ठीक है, तो इस की का फायदा ये है कि ये की आराम से निकल आती है। आप इसमें स्लॉट बनाते हैं, शाफ्ट में एक स्लॉट आप बनाते हैं इसके एलिमेंट के अंदर, जो कि पावर ट्रांसमिटिंग एलिमेंट से यहाँ पे स्प्रॉकेट लगी हुई है, एक स्लॉट आप बनाते हैं शाफ्ट में, और आप इसको स्लाइड करते हैं, और ये थोड़ा स्लाइड करने के बाद दूसरे के ऊपर आ जाती है। आप जैसे आप गियर घुमाते हैं तो ये जो है वो गियर उसके साथ साथ घूमता है। ये बहुत बड़ा फायदा है हमारे पास जो है वो शाफ्ट। कोई सवाल है इसके हवाले से तो जरूर पूछें। इसका मतलब है सारा कुछ समझ आ रही है, अल्लाह करे आ ही रही हो। सो बेसिकली जो की है, दैट इज अ पीस ऑफ माइल्ड स्टील। की क्या होती है? सिंपल सी एक रेक्टेंगुलर किस्म की, इस तरह अगर मैं इसको बनाऊं 3D व्यू में, तो इस तरह की एक चीज होती है बस। ए सॉरी, ये गलत बन गई है, इसको छोड़। सिंपल एक रेक्टेंगुलर पीस होता है मेटल, बस। ठीक है, इसको आप इंसर्ट करते हैं शाफ्ट के अंदर, स्लॉट बनाते हैं आदि। हाँ, असूल इसका ये है कि 50% स्लॉट बनती है, यानी कि की जितनी डेप्थ होती है, दिस इज कॉल्ड द डेप्थ ऑफ द की। इसकी आधी जो स्लॉट है, यानी कि जो आधा हिस्सा है, ये जाती है शाफ्ट में, आधा हिस्सा हो जाता है हब में। हब का मतलब होता है जो आपका स्प्रॉकेट है, इसका जो पार्ट होता है, जो माउंटिंग पार्ट होता है, उसके ऊपर जो टीथ है ना, जो जिसको चेन चढ़ता है, ये जो माउंटिंग पार्ट होता है, ये वाला जो इसका जाता है, इसको हब कहते हैं। ये उसके ऊपर माउंट होता है। तो जो आइडियली असूल है, असेंबली का असूल है, वो ये है कि आधी की जो है वो शाफ्ट में होगी और आधी की किसमें होगी? हब के अंदर। एक कीज ऑलवेज इंसर्टेड पैरेलल टू द शाफ्ट। चंद केसेस में की पैरेलल नहीं होती, लेकिन 90% केसेस में की को पैरेलल रखा जाता है। अगर ये शाफ्ट के एक्सेस जा रहा है तो की हमेशा इसके पैरेलल रखी जाती है। दिस इज द की, ये इसके पैरेलल रखी जाती है। ये असूल है इसकी असेंबली का। अच्छा, दिस इज काइंड ऑफ टेम्परेरी फास्टनिंग। ये जो मैं आपको कह रहा था, जब बहुत बड़ा फायदा की का ये है। और ना अगर आपको होल्ड करने के लिए इसको या तो वेल्ड करना पड़ेगा, या फिर आपको टाइट फिट कर, टाइट फिट में भी ये स्लिप हो जाएगी ऊपर से। एक ही तरीका, आप वेल्ड कर दें। वेल्ड करने पे वही मसला है कि जब आप इसको निकालेंगे तो फिर ये निकलेगी नहीं, फिर आपको वेल्ड काटने पड़ेंगे। वेल्ड काटेंगे तो ये भी खराब होगी, तो खराब होगी। इसका फायदा ये है कि आप उसको हल्के से हिट करेंगे, ये आराम से की भी लैदा हो जाएगी, गियर भी लैदा हो जाएगा। लेकिन जब ये माउंटेड होंगे तो ये की हिलने नहीं देगी इसको ऊपर से, मतलब शाफ्ट के साथ घूमेगा। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको बताया गया कि किस तरह असेंबली होती है। ये आपके पास हब है। हब का मतलब होता है, ये इसके ऊपर कोई भी चीज हो सकती है। इसके ऊपर आपके पास व्हील भी हो सकता है, इसके ऊपर गियर हो सकता है, पुली हो सकती है, स्प्रॉकेट हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। और ये आपके पास शाफ्ट है। और आप गौर करें तो ये थोड़ी सी स्लॉट आपको यहाँ नजर आ रही है, ये स्लॉट, ये है, इसको कीवे कहते हैं। और ये भी की सीट है या कीवे कह लें। ये यहाँ पे जो है ना वो की होती है, और ये की है। ये जिसे हम देखें रेक्टेंगुलर पीस है, कुछ भी नहीं है, रेक्टेंगुलर इतना सा पीस ले ले मेटल का, वो की है। और वो आप इसको इंसर्ट कर जगह में की रखते हैं, तो ये आपके पास जो है वो आपकी असेंबली हो जाएगी। जब आपको निकालना हो, आप आसानी से इसको थोड़ा सा हिट करेंगे, अलग हो जाएगी। ठीक है। अब बेसिकली क्या चीज है?
की में आइए चले आगे जाके उसको बात करते हैं। की टाइप्स कौन सी होती हैं? तो की के अंदर सबसे पॉपुलर टाइप है जिसको संक की कहते हैं। ठीक है, अभी टाइप्स की बात करते हैं। संक की का मतलब होता है संक। संक का मतलब होता है डूबना। डूबने का मतलब होता है कि आधी की जो है वो शाफ्ट में डूबी होती है और आधी की जो है वो हब में डूबी होती है। तो अगर आप गौर करें तो ये आपके पास इस डायग्राम में ये आपके पास हब है, ऊपर जो आपको नजर आ रहा है जो अंदर व्हाइट से नजर आ रहा है ये इसकी शाफ्ट है। तो देखिए आधी की जो है वो शाफ्ट के अंदर है और आधी की जो है वो हब के अंदर है। वैसे कहते हैं संक की, संक होना यानी कि डूब जाना। ठीक है, इसका वर्ड निकला ही एक्चुअल इसके इंग्लिश मीनिंग से। ठीक है, संक की। अच्छा, जो हमारा डिजाइन है पूरा वो सिर्फ संक की पे होगा। अभी चूंकि अगेन इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हर की डिजाइन नहीं कर सकते क्योंकि हर की का डिजाइन दूसरे से मुख्तलिफ है। तो हम सिर्फ इस पूरे कोर्स के अंदर संक की को डिजाइन करेंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। संक की 90% एप्लीकेशन में यूज होती है, मोर देन 90% एप्लीकेशन में संक की इस्तेमाल होती है। बाकी कीज कहां इस्तेमाल होती है वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि बाकी कीज कहां का, लेकिन मोस्टली मैं हर एप्लीकेशन में नहीं कहता, चंद स्पेशलाइज एप्लीकेशन है जहां पे और भी कीज इस्तेमाल होती है। लेकिन गाड़ियों की, ये आपको गाड़ियों की समझ बहुत नजर आएगी। गाड़ी के अंदर जितनी पुलिस और शार्प लगी होती है इनमें कीज बहुत ज्यादा यूज हुई होती है। ये बड़ा कॉमन है, ये बड़ा कॉमन वो मेथड है हब और शाफ्ट को आपस में इंटीग्रेट करना। अच्छा, स्टंग की उसके बाद आती है सैडल की। सैडल की अगर आप गौर करें तो इस तरह की होती है। जो सैडल का मतलब क्या होता है किसी को पता है? सैडल को उर्दू में कहते हैं आम फैम लफ्ज में। अस्तबल हाँ, अस्तबल सर यहाँ पे अस्तबल नहीं, जो घोड़े के ऊपर डालते हैं उसको काठी कहते हैं। ठीक है, इसको सैडल भी कहते हैं। ठीक है, जो काठी डलती है घोड़े के ऊपर जिसके ऊपर राइडिंग करते हैं। अब ये इस की का नाम उसकी मुनासबत से। अब आप की को जरा गौर करें, ये की है आपके पास। अब इस की में शाफ्ट के ऊपर कुछ भी नहीं किया, आप गौर करें, शाफ्ट को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, हमने उसके ऊपर एक की प्लेस कर दी है। तो इसको सैडल इसलिए कहते हैं कि हमने सिर्फ की रखी है उसके ऊपर, हमने शाफ्ट को नहीं छेड़ा। जबकि संक की में आपको शाफ्ट के अंदर भी कीवे बनाना पड़ता है, इसे कहते हैं सैडल की। ये मैं आपको ये नाम इसलिए बता रहा हूं कि ये जो नाम है ये उसकी मुनासबत से है जिस तरह इनकी माउंटिंग प्रिंसिपल है। संक का मतलब डूबना, वो डूबी होती है। सैडल का मतलब होता है काठी की तरह ऊपर रखना, सिर्फ उसको अंदर नहीं लेके जाते, उसको सैडल की कहते हैं। फिर होती है टेंजेंट कीज। ये टेंजेंट कीज बहुत कम यूज होती है, बहुत स्पेशलाइज एक दो एप्लीकेशन है जहां पर यूज होती है। लेकिन टेंजेंट की इस तरह की होती है कि ये इस तरह संक होती है, यानी कि इसकी अगर लाइन बनाए तो एक तरह का टेंजेंट बनेगा। ठीक है, ये देखें, ये आधी शार्ट में संक होती है लेकिन तिरछी होती है और आधी हब में होगी। ठीक है, इसका डिजाइन काफी मुश्किल होता है करना। इसके डिजाइन चूंकि इसमें फोर्सेस एंगल पे आती है इसलिए इसका डिजाइन काफी डिफिकल्ट होता है, इसलिए वो आपके बैचलर्स कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ ये पता हो कि टेंजेंट की होती क्या। ठीक है, कोई सवाल पूछ रहा था दरमियान में? सॉरी मैंने सुना नहीं। नो सर, वो जूम का कह रहा था, जूम कर देना, नजर नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये बस मैं आपको बता रहा था कि ये आपके पास ये जो है वो टेंजेंट कीज है। ठीक है, और ये आपके पास सैडल कीज है। ठीक है, सैडल का मतलब ऊपर रखी हुई, देखिए शाफ्ट में कोई भी नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो शाफ्ट के अंदर बकायदा आपको यहाँ पे सैडल संक की में क्या नजर आएगा? संक की में आपको बकायदा ये देखें एक पूरा वो नजर आएगा, एक कीवे नजर आएगा, जबकि सैडल की में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट अप इज दी राउंड की। राउंड की जो होती है उसमें कुछ भी नहीं होता, जिसका ये भी संक की ही टाइप है, संक की ही टाइप है। इस की के अंदर सिर्फ की का जो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन है वो राउंड होती है। इसकी खास वजह होती है, ये भी बहुत चंद एप्लीकेशन में यूज होती है क्योंकि इसका की वे बनाना काफी मुश्किल होता है। बना सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बार राउंड की कम इस्तेमाल होती है। लेकिन ये भी संक की ही फर्दर टाइप होती है। और जो लास्ट बहुत कॉमन इस्तेमाल होने वाली चीज है वो है सप्लाइन। सप्लाइन का डिजाइन मैं आपको टच करवाऊंगा नहीं कि मैं आपको उसका डिजाइन पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको गो थ्रू जरूर करूंगा। सप्लाइन, सप्लाइन ये होती है कि एक शाफ्ट होती है,
इस शाफ्ट के ऊपर मल्टीपल कीज होती है। ठीक है, मल्टीपल कीज होती है, लेकिन ये की अलहदा से नहीं इस पर रखी जाती। जब ये शाफ्ट मैन्युफैक्चर होती है तो की इसका हिस्सा बना के मैन्युफैक्चर की जाती है। ये पॉइंट मेरा गौर समझिएगा। ये जो सप्लाइन होती है, सप्लाइन शाफ्ट भी कहते हैं, सप्लाइन भी कहते हैं, इसके अंदर इसकी सप्लाइन और संकी में क्या फर्क है? संकी एक होती है या दो होती है, सप्लाइन 5 6 8 10 भी हो सकती हैं, 6 भी होती है, अमूमन 5 6 होती हैं। लेकिन बजाय ये कि हर जगह पे कीड़े बनाने के, हम जब शाफ्ट इस शाफ्ट को मैन्युफैक्चर, सप्लाइन को मैन्युफैक्चर करते हैं तो की को इसके अंदर ही बनाते हैं, कि एक ही मेटल पीस से इसकी कीज भी साथ बनाते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे कॉमन, किसी ने कभी सप्लाइन देखी है फिजिकली कहीं लगी हुई, कहीं किसी जगह पे, जहां पे एक शाफ्ट के ऊपर इसी तरह उभरी चीजें बनी होंगी, कट बने होंगे ऊपर? जॉइंट में होता है ना सर, पहली शाफ्ट जो होती है कहां पे? तो सर पहली लेथ शाफ्ट मशीन में इस तरह की देखी थी। लेथ मशीन में कहां देखी? सर ट्रैक्स वो तो एक्सेल हब में भी होती है, किसमें? ट्रक के एक्सेल हब में। वेरी गुड। उसके अब वो वैसे वो ब्रोचिंग होती है, वो उसके अंदर ना वो जो ज्यादा होगी ना आपको, वो इस तरह होगी, मैं आपको बताता हूँ, वो ऐसे करके ऐसे होती है। यस सर, वो इसी तरह होती है। इसको ब्रोचिंग कहते हैं। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट तरह का प्रोसेस, ये भी होती है, ये की नहीं होती बेसिकली, की कह सकते हैं इसको। और जिस तरह और जो ऑटो की गाड़ियों में जो उसकी एक्सल शाफ्ट होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसकी थोड़ी सी ये भी ऐसे ऐसे करके होती है, रादर देन चोंच ना, थोड़ी सी स्क्वायर होती है। इसको भी आप की कह सकते हैं कि ये की नहीं होती, इसको आप कहते हैं ब्रोचिंग, ब्रोच शाफ्ट, ये कहलाती है ब्रोच शाफ्ट। जी ट्रांसमिशन लाइन में होती है ना ये, कौन सी ट्रांसमिशन लाइन? मतलब जो गाड़ी की ट्रांसमिशन लाइन होती है, प्रोपेलर शाफ्ट, और ये जो ट्रांसमिशन जो नहीं, उस गियर बॉक्स, उसमें ब्रोचिंग नहीं होती है, उसमें ब्रोचिंग नहीं होती है, उसमें ब्रोचिंग होती है। ब्रोचिंग होती है। आप जहां पे 5 6 8 होगी ना, वो स्प्लाइन होगी। जहां पे जैसे मेरे पास लियाना के पास जो एक्सेल शाफ्ट, उसके 28 ये टीथ है। ये जो नंबर ऑफ टीथ 12 14 18 20 24 18, ये हर गाड़ी मुख्तलिफ होते हैं, ये ब्रोचिंग कहलाती है। अच्छा, इसको आप कह सकते हैं, मतलब इट्स एक्ट लाइक अ स्प्लाइन, लेकिन ये स्प्लाइन नहीं कहलाती टेक्निकली, ये ब्रोच शाफ्ट कहलाती है। सप्लाइन जो है, ब्रोच शाफ्ट की कोई निशानी है? ब्रोच शाफ्ट के अंदर क्या होगा कि आप शाफ्ट के ऊपर ब्रोच करेंगे इस तरह, तो आप कभी ब्रोच शाफ्ट देखेंगे तो वो ऐसे होगी, थोड़ी सी इस तरह। थोड़ा गौर से देखिएगा कभी इस शाफ्ट को। ये शाफ्ट के ऊपर ही पहले शाफ्ट पूरी बनाते हैं और फिर शाफ्ट के ऊपर ऐसे कट लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, शाफ्ट का डायमीटर क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। आप जो भी ब्रोच शाफ्ट देखेंगे ना, ब्रोच जैसा भी मैंने मिसाल दी, उसके अंदर जो डायमीटर होगा एंड पे, जहां पे ब्रोचिंग हुई होगी, जहां पे टीथ बने होंगे, वो थोड़ी सी डायमीटर कम होगा। ये सारों ने, किसी ने देखा है, इसको गौर किया? अब नहीं देखा तो दोबारा देखिएगा इसको जाके लाजमी। लेकिन सप्लाइन के अंदर क्या होता है, सप्लाइन के अंदर शाफ्ट के ऊपर की होती है, शाफ्ट का डायमीटर रिड्यूस नहीं होता। अब आपने जाके, मैं आपको बताता हूँ सबसे कॉमनली कहां लगी होती है, जो आपकी बाइक की अगली स्प्रॉकेट होती है ना, बाइक की अगली एक होती है पिछली स्प्रॉकेट जो व्हील से लगी होती है, जो अगली वाली स्प्रॉकेट पर कवर चढ़ा होता है, वो कवर अगर इतनी इंजीनियर हो तो दो पेज उसके लगे होते हैं, जिसमें मोटरसाइकिल है, वो उतार के जब आप उसके अंदर वाली देखेंगे, वो जो जिसको क्या कहते हैं स्प्रॉकेट देखेंगे, स्प्रॉकेट जो शाफ्ट पे चढ़ी होती है ना, वो सप्लाइन शाफ्ट होती है। उसमें आपको ये टीथ नजर आएंगे, ये इस तरह के, जिस तरह के मैं आपको बता रहा हूँ। जी सर, जी 1 to 5 में 15 टीथ होती है। 1 to 5 में भी कितने होते हैं? 15 टीथ सर। 3 होते हैं, हाँ। ये सब आप समझ आ कि 3 4 6 मैक्सिमम, 8 तक मैक्सिमम होती है। तो ये क्या होती है, ये सप्लाइन होती है। जो वो नंबर ऑफ टीथ 20 25 28 होंगे, वो ब्रोच शाफ्ट होगी। उसको भी की तरह एक्ट करती है, मैं नहीं कह रहा नहीं करती, लेकिन की नहीं होती प्रैक्टिकली। वो पॉइंट समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिंक करना चाहता हूं कि आपको आइडिया हो जाए
कि इस तरह होती है। ये स्पलाइन का डिजाइन थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि ये टेबल से आपको एक स्टैंडर्ड से लेके चलना पड़ता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं संघ की। जैसा मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ संघ की का डिजाइन पढ़ेंगे, तो सिर्फ संघ की को फोकस करते हैं। मैं प्रॉब्लम नहीं करवाऊंगा आज, मैं आपको सारी थ्योरी आज पढ़ाऊंगा, प्रॉब्लम इंशाल्लाह कलम क्लास में करेंगे। मैंने थ्योरी इसलिए पढ़ा रहा हूं आज ताकि आप इसको गो थ्रू कर लें आज ही। मैं अभी लेक्चर आपसे विद इन इंशाल्लाह आधे घंटे में अपलोड कर दूंगा, आप इसको गो थ्रू करें। कल मैंने आके इसका डायरेक्टली डिजाइन पढ़ाना है, मैं डिजाइन प्रॉब्लम करवाऊंगा इसका, ठीक है। इसलिए बराए मेहरबानी इसको जरा पढ़ लीजिएगा दोबारा, जो नहीं भी समझ आ रही वो दोबारा बात सुनिएगा, कल फिर मेरे से क्लास में बिफोर क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अच्छा, जिसका संघ की बात हुई, संघ की इज प्रोवाइडेड हाफ इन द की ऑफ द शाफ्ट एंड हाफ इन द की वे ऑफ द हब। अब इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं क्रॉस सेक्शन के लिहाज से या उसकी स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो रेक्टेंगुलर की का मतलब क्या है? सो वी हैव क्रॉस सेक्शन लाइक अ रेक्टेंगुलर, इस तरह होगी या इस तरह होगी, ठीक है। इसी तरह स्क्वायर, वो स्क्वायर होगी। पैरेलल संघ की का कॉन्सेप्ट इतना खास नहीं, ये भी वो पैरेलल ही होती है। पैरेलल से मुराद क्या होता है? ये इसी की टाइप है। गिव हेड की एक होती है, गिव हेड की में ये गिव हेड कहलाता है। इसका फायदा क्या होता है कि अगर आपने की निकालनी अलग से, वैसे तो आप जब माउंटिंग करेंगे, जैसे आपके पास ये लेट से आपका शाफ्ट है और ये आपने ऊपर एक गियर लगा दिया, ठीक है, बस मैं रफ से जरा बना रहा हूं, ये गियर लगा दिया, ठीक है, तो यहां पे की लग जाएगी। आपको की को निकालने के लिए गियर को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोई असेंबली इस तरह की है कि जहां पे आप गियर नहीं निकालना चाहते या वो नहीं निकलेगा, तो आप ये इसके अंदर एक हेड होता है, आप यहाँ पे एक थोड़ा सा नुकीली को चीज रखेंगे, यहां से हैमर से हिट करेंगे उसको, तो क्या होगा? ये स्लाइड होके बाहर आ जाएगी। सिर्फ गिव हेड बनाते हैं, मतलब की संघ की होती है, की का कॉन्सेप्ट संघ की होता है, और इसके अंदर गिव हेड बनाने का मकसद ये होता है कि ये हेड जो है इसके अंदर आप कोई भी चीज रख के आप इसको स्ट्राइक करते हैं, तो की को आप ये गिव हेड वहां यूज करते हैं जहां पे की को आपने पहले अलग करना हो, ठीक है। तो गिव हेड जनरली है। अच्छा, की बड़े मजे की बात यह है कि की बहुत डिपेंड करती है शाफ्ट के डायमीटर के ऊपर, क्योंकि लेट से आपके पास एक मेरे पास शाफ्ट का डायमीटर है और आप कहते हैं इतनी मैं कीवे बना दूं, आधी शाफ्ट में तो कीवे ही चला गया ना, तो इसका नुकसान क्या होगा? आपकी शाफ्ट बहुत वीक हो जाएगी स्ट्रेंथ में। तो इसीलिए जब इसको डिजाइन करते हैं तो इंस्टेड कि हम इसको प्रॉपर्ली डिजाइन करें, जो कि हम करेंगे बाद में, जो कि निकलती भी है, हम जो है बेसिकली क्या करेंगे कि हम इसको जो है वो इसकी एक लिमिट डिफाइन, ये इसकी एक्सट्रीम लिमिट है, यानी कि की के अंदर 3 डायमेंशन है। मैं दोबारा बता रहा हूं, मेजर 3 डायमेंशन है, बाकी तो गिव हेड तो अलग होता है। ये 3 डायमेंशन जो है वो ये है, विड्थ ऑफ द की, ये जो अभी आपको यहां नजर भी आ रही है, मैं यहां वैसे बना दी, यहां पे नजर आ रही है, विड्थ ऑफ द की, थिकनेस ऑफ द की और लेंथ ऑफ द की, ठीक है। अब आपने कोई भी की डिजाइन करनी है तो आपको की, अब आपको आता है डिजाइन संघ की। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, यू हैव टू फाइंड द विड्थ ऑफ द की, you have to find the thickness of the key, you have to find the length of the key। ये सारा को पॉइंट समझ आ गया? जब भी आपको डिजाइन आएगा तो हमें 3 डायमेंशन की फाइंड करनी है। ये 3 डायमेंशन मतलब ये है आपने फाइंड कर ली बस की, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही 3 डायमेंशन अगर आप किसी को देंगे मशीन वाले को, वो आपको की बना देगा, क्योंकि उसको तो यही चाहिए ना, इसकी विड्थ कितनी, थिकनेस कितनी, लंबाई कितनी है, तीनों तो जाएंगे, बहुत बना देगा आपको। डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि अगर आप किसी को ये डायमेंशंस दें तो प्रैक्टिकली वो चीज बना सके। ये पॉइंट सर क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? ठीक हो गया? डिजाइन का मतलब क्या है कि प्रैक्टिकली आप उसको चीज बना के दें ताकि वो, डायमेंशंस दें ताकि वो सारी डायमेंशन, जितनी भी डायमेंशन उस चीज को बनाने की रिक्वायर्ड है, वो सारी आपने डिजाइन करनी होती है। मजे की बात क्या है
की दो डायमेंशन ऐसी हैं जिसको आपको डिजाइन नहीं करना पड़ता प्रैक्टिकली। क्यों? क्योंकि वो डायमीटर पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अगर आपके पास रेक्टेंगुलर संक की है, नॉर्मली विड्थ जो होती है वो d/4 से एक्सीड नहीं कर सकती, इज लेस एंड इक्वल टू d/4। अब वो इसको इक्वल लेते हैं, लेस भी ले सकते हैं, इक्वल भी लेते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए आप इक्वल लेते हैं, यानी कि आप निकालते नहीं। तो विड्थ इसकी कितनी होगी? d/4। d क्या चीज है? डायमीटर ऑफ शाफ्ट। d क्या है? डायामीटर ऑफ शाफ्ट। अच्छा, उसके बाद थिकनेस, ये वाली जो थिकनेस है, ये किसके बारे में होती है? इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड 2w/3। 2w मतलब ये विड्थ, अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा d/6। मैक्सिमम जो थिकनेस हो सकती है की वो d/6 से एक्सीड नहीं करेगी। अगर डायमीटर 20 mm है या 18 mm फॉर एग्जांपल, तो ये 3 mm से ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये लिमिट्स हैं। जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि हमें लेंथ का कोई आइडिया नहीं होता। ठीक है, लेंथ का हमें कोई आइडिया नहीं होता, इसीलिए लेंथ को हमें डिजाइन करना पड़ता है। विड्थ और थिकनेस जो है वो इसकी लिमिटेड। अगर आपको शाफ्ट का डायमीटर पता, जो कि पता होता है आपको, क्योंकि आपको डायमीटर के बगैर तो आप डिजाइन नहीं कर सकते की को, क्योंकि शाफ्ट पहले डिजाइन होगी फिर की डिजाइन होगी उसके साथ। तो अगर आपको शाफ्ट का डायमीटर पता है तो फिर की डायमेंशन निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन की दो डायमेंशन विड्थ और थिकनेस यहां से निकल आती है। ठीक है, ये भी नोन हो जाएगी और ये भी नोन हो जाएगी। प्रॉब्लम आएगा आपके पास, इसकी लेंथ नोन नहीं होती। लेंथ नोन होने के लिए हमें इसको डिजाइन करना पड़ता है। वो कैसे, हम आगे आकर देखते हैं। अच्छा जी, जो गिब हेड होता है, ये जो गिब हेड का ऐसा टेपर कुछ समझता है थोड़ा सा। टेपर बेसिकली होता है 1:100, यानी कि अगर इसकी लेंथ 100 है, इसकी लेंथ 100 है, इसके अंदर इस और यहां पे 1 mm का फर्क होगा। इसका बेसिकली फायदा ये होता है कि आप गौर करें तो आप जब इसको यहां से थोड़ा सा स्ट्राइक करेंगे तो थोड़ा टाइट होता जाएगा यहाँ पे, तो हब और जो आपके पास शाफ्ट है उसको ये मजबूत पकड़ लेगा, क्योंकि थोड़ा टेपर है। जब इसको निकालेंगे तो आसानी से निकल आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइट करने के लिए यूज होता है टेपर। टेपर का डिजाइन नहीं होता, ये स्टैंडर्ड टेपर होता है इसके अंदर। ये मैन्युफैक्चरिंग में आप उसको बता सकते हैं। आप कहें यार मेरे पास संक की है इस साइज की, लेट से मैं आपने लेंथ निकाल ली 100 mm, मिसाल दे रहा हूँ, विड्थ और थिकनेस भी निकाल ली, और मेरा विड्थ है लेट से इसकी 4 mm और थिकनेस भी है 4 mm। आप ये बना दो, लेकिन 1:100 की टेपर रख देना, तो वह करेगा कि लेट से इसकी यहां पे थिकनेस है 4 mm। वो बता सकते हैं इस टेपर में इसकी यहां थिकनेस कितनी होगी? कितनी होगी? है 5 mm होगी भाई। 4.01 mm। नहीं सॉरी नहीं 4.01 mm नहीं, सॉरी। हाँ, अगर इसकी लेंथ 100 mm है तो इसकी थिकनेस के अंदर जो वेरिएशन आएगी वो आएगी, हाँ सही कह रहे हैं, सही लिखा था, 4.01 mm यहाँ पे होगी। इतना टेपर होगा, बस मामूली सा टेपर है ये, 4.01 mm। आपको लगा सर ये तो वही बात है, हाँ इतना बड़ा टेपर नहीं होता, क्योंकि ये आपस में फिटेड होते हैं सारे, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना ये फिटेड होते हैं, तो बहुत मामूली सा टेपर रखना पड़ता है, सिर्फ एक उसको टाइट कर दे बस। और अगर आपको गिब हेड की डिजाइन करने के लिए आ जाए तो गिब हेड को आपने सेपरेटली डिजाइन करना है। ये गिब हेड है, इसकी अगर वो टी बता दे तो हेड का ये 1.75 टी होता है और ये 1.5 टी होता है। तो आपको आ सकता है डिजाइन गिब हेड की, लेकिन आपको फिर ये डायग्राम साथ दी होगी, या दी ना हो तो बुक तो होगी, आप तो देख सकते हैं। उस केस में आपने इसकी डायमेंशन फाइंड कर लेनी। ठीक है, अच्छा स्प्लाइन की बात होगी। स्प्लाइन मैंने बात, स्प्लाइन में 3 या 4 इंटीग्रेटेड कीज होती हैं। ब्रोच्ड इन द हब, ब्रोच्ड का मतलब होता है वही आपने उसको ब्रोच किया होता है हब के अंदर। ठीक है, और उसको जो है वो हम सप्लाइन शाफ्ट कहते हैं। अच्छा, आप विड्थ और थिकनेस जो है, ये देखें यहाँ पे विड्थ है और यहाँ पे थिकनेस है, ये आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। इससे ये फार्मूले से ही निकली हुई है। विड्थ होती है d/4, सॉरी हाँ, और d होती है d/6। इससे भी निकाल सकते हैं
या अगर शार्प और डायमीटर से टेबल भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। दोनों में मैं आपकी गलती, ये टेबल भी बुक में मौजूद है, आप टेबल भी यूज कर सकते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो यूज करते हैं वो करें, टेबल से टेबल यूज करें। लेट्स से आपको शार्प और डायमीटर दिया हुआ है, अब देखिए जैसे मैं 18 mm देता हूँ, अब 18 mm यूज अवेलेबल नहीं है तो आप ये यूज कर लें। 17 mm है तो आपको पता है दोनों की जो थिकनेस है वो ये होगी, ठीक है। तो ये एक आइडिया है यूज करने का। स्टैंडर्ड जो टेपर्ड और गिब हेड कीज होती है उनकी जो रेशियोज होती है वो ये यूज होती है। ये आपकी मर्जी है, आप इट्स टोटली योर चॉइस। अच्छा, अब जो इसमें मेजर चीज है, जो 10-15 मिनट हम मैं आपके और लूंगा और आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि की का फेलियर कैसे होता है। अब जो हमने जितने भी हम डिजाइन करते हैं, हम पहले समझने की कोशिश करते हैं की फेल कैसे हो सकती है, यानी की के अंदर स्ट्रेसेस कौन कौन सी आती है, और फिर उस लिहाज से हम इसको डिजाइन करते हैं। अब मजे की बात क्या है, मजे की बात जो हम पहले कर चुके हैं कि की के अंदर जो आपकी जो विड्थ और थिकनेस है वो नोन होती है फ्रॉम डायमीटर। डायमीटर पता होता है लेकिन लेंथ नोन नहीं होती। ये जो हम फेलियर एनालिसिस करते हैं ये इसलिए करते हैं कि ताकि हम इसकी लेंथ निकाल सकें, लेंथ हमें नोन नहीं होती। तो की किस तरह फेल हो सकती है इसको जरा गौर से देखते हैं। की के 3 मोड्स ऑफ फेलियर है। एक तरीका की शेयर हो सकती है, कहां से मैं भी बताऊंगा, हब और उसके इंटरफेस से। मैं भी आगे फिर आता हूं। की कंप्रेस हो सकती है, प्रेशर से, कंप्रेशन फेलियर से फेल हो सकती है। तीसरा की टॉर्जन से फेल हो सकती है, अगर शाफ्ट में टॉर्क पैदा हो जाए, टॉर्जन हो जाए शाफ्ट में, तो वो की को भी साथ ही ट्विस्ट कर देगी। तीनों को बारी बारी देखते हैं वो कैसे। अच्छा, अब आप गौर करें कि जब आपके पास शाफ्ट रोटेट करती है, इसके ऊपर एक हब है, हब से मुराद क्या है, लेट्स से इसके ऊपर एक स्प्रॉकेट है जिसको ये घुमा रही है। तो शाफ्ट का मकसद खाली घूमना तो नहीं होता ना, शाफ्ट का मतलब कोई चीज घुमाना होता है ना, उसके ऊपर स्प्रॉकेट घूम रही है। अब आपने बड़ा गौर से मेरा पॉइंट सुनना है। तो लोड की डायरेक्शन क्या है, लोड ऐसे है, ये टॉर्क है, तो किसी भी पॉइंट पर लोड किस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट। अगर की यहां लगे तो यहां पे लोड कैसे होगा, ये समझ आ रहा है, किसी भी पॉइंट पे ये लोड के डायरेक्शन में बता दिया तो आपको पता ही है ये लोड सा टेंजेंट होता है, ठीक है। जहां पे की लगी है, अगर मैं एग्जैक्ट सेंटर इसका लूं तो लोड की डायरेक्शन ये बनेगी। अच्छा, अब आप थोड़ा गौर से देखें इसको, तो जो शाफ्ट और हब का इंटरफेस है, मैं यहां पे थोड़ा क्लियर के बनाता हूं। ये आपके पास शाफ्ट है, ये आपके पास हब है। हब का मतलब कोई भी चीज हो सकती है, और ये की है, ये की आधी शाफ्ट में आधी हब में। तो आप थोड़ा सा गौर करें अगर इसको, तो इस पॉइंट पर लोड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। जैसे शाफ्ट रोटेट करेगी ये हब बेसिकली पीछे की तरफ जाएगा, ये रुकने की कोशिश करेगा। ये एक नेचुरल रेजिस्टेंस होती है मशीन की। जब शाफ्ट इसको घुमाने की कोशिश करती है एकदम ये थोड़ा रुकेगा। आप कभी देखिए हो कभी प्ले होती है बिटवीन स्प्रॉकेट्स एंड देखो थोड़ी सी टक करके आ जाती है, ये बेसिकली वो स्प्रॉकेट चलने की रुकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही शाफ्ट उसको जोर लगाती है वो घूम जाती है। लेकिन अगर की फेल हो जाए इसके अंदर से, की ही टूट जाए, ये देखें ये वाली की ही टूट जाए तो क्या होगा, ये शाफ्ट स्लिप कर देगी हब के ऊपर से। जैसे ही शाफ्ट स्लिप करेगी ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी। आप इस तरह मिसाल लें, आपके इंजन से शाफ्ट बाहर आ रही है जो छोटी स्प्रॉकेट में लगी होती है, बाइक की बात करो, और वहां से आपकी वो शाफ्ट जो स्लिप हो जाए तो क्या नुकसान होगा, वो पावर ट्रांसमिट ही नहीं होगी आपकी स्प्रॉकेट में। जब वो उस स्प्रॉकेट तो पिछले आपकी पावर ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी। अब गौर करें तो बेसिकली ये वाला जो एरिया है, जो इंटरफेस है किसका, शाफ्ट का और हब का, ये आपस में कट सकता है। ये एक फेलियर मोड कैसे हो सकता है, ये आपके बाद मैं की खाली बना रहा हूं, ये देखो गौर करें, आधी शाफ्ट में आधी हब में, तो ये की स्लाइस हो जाएगी दो हिस्सों में, आधी इधर आ जाएगी आधी। जैसे ये स्लाइस होगी शाफ्ट अलग हो जाएगी, हब अलग हो जाएगी, हब अलग हो जाएगा, और शाफ्ट अंदर घूमना शुरू हो जाएगी और हब नहीं घूमेगा क्योंकि की क्या हो गया, शेयर हो गई। मेरा ख्याल है होपफुली आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें कौन सा एरिया, पहली बात है ये कौन सी स्ट्रेस है, तो आप गौर करें तो फोर्स की डायरेक्शन ये है
और एरिया भी ये वाला है, एरिया भी ये वाला है और फोर्स भी ये है, तो ये बेसिकली क्या है, शेयर। ये बात तो हमें समझ आ गई। की का जो पहला फेलियर है वो किसकी वजह से होगा, वो होगा शेयर की वजह से। वो शेयर कहां आएगा, वो शेयर आएगा कहां पे, यहां पे। अगेन मैं दोबारा बता रहा हूं, फोर्स की डायरेक्शन पैरेलल है और ये एरिया कट हो रहा है, यानी कि वो एरिया स्लाइस हो रहा है। अगर सादे अल्फाज में आपको बना के दिखाऊं, ये की आपके पास 3D में बना रहा हूं। तो कौन सा एरिया बेसिकली शेयर कर रहा है, एरिया शेयर कर रहा है, जस्ट मैं आपको डिफरेंट कलर से जस्ट आइडिया हो जाए आपको। बेसिकली आप गौर करें तो ये वाला जो एरिया है जो बेसिकली ये सेंटर से आ रहा है, ये देखिए ये जो एरिया सारा, ये मैं इसको कर रहा हूं, ये एरिया आपका बेसिकली शेयर करेगा और ये फोर्स की डायरेक्शन है जो इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब फोर्स और एरिया पैरेलल हो गया आपस में, तो ये शेयर स्ट्रेस है। ये एरिया कितना होगा, अब जब मैंने आपको शुरू में बताया था कि मशीन एलिमेंट्स की डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एरिया आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रेस की टाइप और एरिया आइडेंटिफिकेशन। तो एरिया इसमें बनता है, जो स्लाइड पे आपको नजर भी आ रहा होगा, दैट इज, देखिए ये इसकी क्या चीज है, ये इसकी है विड्थ और ये क्या चीज है दूसरी, ये है इसकी लेंथ। तो एरिया शेयर हो रहा है वो क्या है, एरिया इंटू WL, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है फाइंड करना। आपको पूरे डिजाइनर मशीन एलिमेंट में एक चीज जो कॉमन नजर आएगी वो है एरिया आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रेस कौन सी है और कौन सा एरिया शेयर हो रहा है। सो आपको समझ आ गया कि टाउ होता है F/A। अच्छा, तो F से मैं A क्या होगा, WL, ठीक है, ये एरिया शेयर होगा। अच्छा, अब F क्या है, F फोर्स है। अब फोर्स भी डायरेक्टली गिवन नहीं होती, आपको क्या चीज गिवन होती है, टॉर्क। टॉर्क या पावर ऐसी चीज है जो आपको डायरेक्टली पता होगी, लेकिन आपको फोर्स, चूंकि फोर्स मेजर नहीं की, फोर्स मेजर हो सकती है कि आप मेजर करते नहीं है, तो आप फोर्स को भी टॉर्क में कन्वर्ट करेंगे। ये देखेंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू FR, F इक्वल टू टॉर्क ओवर R। तो फाइनल फार्मूला बनेगा ये वाला, टाउ इज इक्वल टू 2T ओवर WDL। W is the width of the key, D is the diameter of shaft, L is the length of the key। तो जो शेयर का फार्मूला बनेगा, और यहां से हमने चूंकि लेंथ निकालनी है तो लेंथ को हम अलग कर लेंगे, सो लेंथ विल बी 2T ओवर टाउ DW। ये पहला डिजाइन फार्मूला है लेंथ के लिए, शेयर के लिए। मेरी बात गौर सुनिए, पहला फार्मूला जो लेंथ के लिए है वो ये वाला है, ये प्योर शेयरिंग के केस है, अगर की शेयर कर दे। अब इसकी एक और बी फेलियर हो सकता है, वो क्या, की इसके अंदर है आदि, तो क्या होगा, ये जो की है, मैं जरा इसको थोड़ा सा इसको रब कर लूं जरा, अब देखें ये जो की है ये आदि इसके अंदर है, तो जब ये शाफ्ट आगे घूमेगी तो वो इसको प्रेशर लगाएगी, वो जितनी शाफ्ट के अंदर है, और ये इसको बैक प्रेशर लगाएगी। तो ये जो एरिया है जो कि इसके अंदर है, ये परपेंडिकुलर है फोर्स के, ये वाला, गौर से मेरी बात सुननी है, ये वाला एरिया मैं खुद जूम करके आपको दिखा देता हूं। ये वाला एरिया जो शाफ्ट के अंदर है, ये एरिया परपेंडिकुलर है फोर्स के, और ये फोर्स क्या है, गौर करेंगे, इसको दबाएगी, इसको वापस पुश करेगी, तो ये कंप्रेसिव फोर्स होती है। क्या होती है, कंप्रेसिव फोर्स। द एरिया इज, अगर आप एरिया देखेंगे तो वो क्या होगा, अब कोई बता सकता है एरिया क्या है, ये वाला एरिया, ये कौन सा एरिया, पूरा एरिया की का जो साइड पे नजर आ रहा है आपको, ये पूरा, कोई बता सकता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस एरिया का आधा एरिया है पूरी की के ऊपर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एरिया, एनीवन। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, एरिया की वैल्यू क्या होगी, अगर हाफ की, आप भी हाफ की कंसिडर करें, हाफ की शाफ्ट में। असल में एनालिसिस हम हमेशा डुअल नहीं करते, हम आधे में करते हैं, आधी की वही चीज
हब में हो रहा है, लेकिन हम एक एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। तो आधी आपकी की शाफ्ट के अंदर है, तो उस आधी की जो शाफ्ट के अंदर है उसका एरिया क्या होगा जो कि कंप्रेस हो रहा है, जो क्रश, इसको क्रशिंग भी कहते हैं, क्रश हो रहा है, वो परपेंडिकुलर एरिया, वो क्या एरिया होगा? एनीवन? लेंथ की जगह थिकनेस आ जाएगी। लेंथ की जगह पे थिकनेस गौर से देखें। सर वो लेंथ लेंथ ही रहेगी, लेकिन जो दूसरी अब यहाँ पे विड्थ की जगह यहाँ हाँ, पर जितना कट बना हुआ है शाफ्ट के अंदर, वेरी गुड, ये थिकनेस है। सर ये हाँ, गुड, सही था रहे। थिकनेस ही है शायद। तो कितनी आएगी? अगर हाफ है तो क्या एरिया होगा? थिकनेस हाफ आएगी सर। थिकनेस वेरी गुड, की लेंथ वही इट्स LT/2। आपको पॉइंट समझ आया? यही मुश्किल है बस इसके अंदर, पूरे सब्जेक्ट में क्या मुश्किल है? एरिया आइडेंटिफाई करना, बस। अब आपको आइडिया हो गया, इट्स नॉट W इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि एरिया अब परपेंडिकुलर लेना है। तो क्या आ गया? तो आप गौर करेंगे, नेक्स्ट क्या होगा? एरिया विल बी LT/2। ठीक है। नाउ स्ट्रेस विल बी नॉट टाउ बट नॉर्मल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव क्यों आ रही है? अब इसको बड़ा गौर से समझे। जब ये शाफ्ट आगे जाएगी तो उसको दबाएगी, इस की को, जिसको प्रेस करेगी, इस ये क्रशिंग या कंप्रेसिव स्ट्रेस है। इसी सिग्मा C लिखा हुआ है। तो आप देखें, ये क्या है? ये F है। F इज इक्वल टू T/R। R को उसने लिखा है D/2। ठीक है। और LT/2 क्या? ये एरिया है। इसको लेंथ निकाले तो क्या आएगा? लेंथ का ये फॉर्मूला आएगा। सिंपल, एल को एक तरफ करें, बाकी दूसरी तरफ कर दें। समझ आ गया? ये सारों को समझ आ गया? दूसरा मोड ऑफ फेलियर क्रशिंग की वजह से भी हो। अब देखो, ये ध्यान में रखना, हो सकता है, ये होता नहीं है। फेलियर किसी एक मोड पे डोमिनेट करता है, या तो वो होगा कंप्रेसिव पे, या तो वो होगा शीयर पे। ठीक है। और टॉर्शन भी होता है, वो आगे जाके बताता हूं। लेकिन जब एक्चुअल में की फेल हो जाए तो कोई भी एक मोड डोमिनेट करता है, मतलब 90% एक का कंट्रीब्यूशन होगी। ये डिपेंड करता है मशीन कैसी है, उसके अंदर कोई जर्क तो नहीं है, पावर कितनी है, बहुत सारी और चीजें होती है। थर्ड केस है टॉर्जनल केस। टॉर्जनल केस बेसिकली टॉर्जन शीयर ही होती है। टॉर्जन इज अ टाइप ऑफ शीयर। तो अगर मैं ये कहता हूं, बड़ा गौर से आपने मेरी बात सुनी है, ये पॉइंट यहां लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं लहदा। शाफ्ट की टॉर्जन क्या होती है? टॉर्शन शीयर स्ट्रेस, ये फार्मूला होता है। तो सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है टाउ इज इक्वल टू TR/J। ये टॉर्शनल शीयर स्ट्रेस है शाफ्ट की। ठीक है। ये टॉर्शनल शीयर स्ट्रेस है शाफ्ट की। ठीक है। और जो की होती है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अच्छा, की में चूंकि की एक छोटी सी पार्ट में डली होती है, तो की इटसेल्फ में टॉर्जन नहीं होती, की में शीयर होती है। लेकिन शीयर का फार्मूला हम ऑलरेडी की का निकाल चुके हैं। और टॉर्जन भी शीयर ही है, मतलब ये इसको लगा ना समझे, ये भी टाउ ही है, ये भी शीयर है, लेकिन टॉर्जन टाइप है। ठीक है। ये दोनों जो है वो, ये दोनों शीयर स्ट्रेसेस हैं। अगर हम इस फार्मूला के अंदर इफ वी कंसिडर, अब ये टॉर्क क्या चीज है? टॉर्क एक्सटर्नल फैक्टर है जो दोनों पे सेम अप्लाई हो रहा है। देखिए, टाउ और शाफ्ट सेम नहीं है। टाउ की टाउ शाफ्ट सेम जरूरी नहीं हो, जे जरूरी नहीं है सेम हो, सॉरी जे कह रहा हूं, आर जरूरी नहीं है। कोई भी ऐसी डायमेंशन है जो सेम, हाँ इसमें आर सेम होगी। इसके अंदर जो एक चीज कॉमन है दोनों फार्मूला में, वो टी है। क्यों टी कॉमन है? क्योंकि टी एक्सटर्नल फैक्टर है ना, कि टी दोनों को एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, क्योंकि टी बाहर से आ रहा है, इसके अंदर की चीज नहीं है। आप क्या करें, अब दोनों में से टी निकालने दें। टी इज इक्वल टू, इसमें से निकालें तो क्या बनेगा? टाउ शाफ्ट इंटू जे ओवर आर, ये लिखा है। ये टी और ये भी टी है। इसमें से अगर आप टी निकालें तो ये बनेगा टाउ की इंटू WDL, विच इज दिस, डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला गौर से समझना।
ये आखिरी स्लाइड है, अब बस हम खत्म करें, मुझे पता है लाइन पूरा हो गया लेकिन बस इसको क्विकली वाइंड अप करें। मैंने कल असल में प्रॉब्लम करवाना है डायरेक्टली, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थ्योरी आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें। अच्छा, ये आगे इक्वेट कर दिया आपने। इक्वेट क्यों किया है? क्योंकि टॉप को आपने दोनों फार्मूला से इक्वेट किया है। अगेन आप यहां से यहां पे कंप्रेसिव और शेयर को आपस में रिलेट नहीं कर सकते, दोनों की नेचर फर्क है, लेकिन आप शेयर और शेयर को आपस में रिलेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों की स्ट्रेस नेचर सेम है। शाफ्ट की भी शेयर है और की भी शेयर ही है। ठीक है, जब आप इसे इक्वेट करेंगे आपने फिर यहां से लेंथ ही निकालनी है। अब मजे की बात है, लेंथ सिर्फ एक फार्मूला में है, वो की के अंदर है, क्योंकि शाफ्ट की तो कोई शाफ्ट की लेंथ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहां पे लेंथ का एक और फार्मूला आ जाएगा, व्हिच इज दिस। ठीक है, अगर शाफ्ट और की मटेरियल सेम हो तो फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा आपस में। ये देखिए जरूरी नहीं है, मोस्टली केस में ये होता भी नहीं है। शाफ्ट और की का एलिमेंट आपस में की शाफ्ट सॉरी जो क्योंकि टाउ है ना, टाउ अलाउेबल होगी दोनों की। अगर दोनों का मटेरियल सेम है तो दोनों की अलाउेबल भी सेम ही होती है। उस केस में आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो ये कैंसिल नहीं होती। तो वी एंड अप विथ थ्री रिलेशंस। फर्स्ट, L इक्वल्स टू, मैं चला जाता हूं वापस, L इक्वल्स टू 2t ओवर WDL, 2t ओवर सॉरी लेंथ का फॉर्मूला, 2t ओवर टाउ DW, 2t ओवर टाउ DW। सेकेंड फार्मूला कंप्रेसिव का 4t ओवर सिग्मा C TD, 4t ओवर सिग्मा C TD। और थर्ड फार्मूला टाउ पाई R स्क्वायर ओवर 2W टाउ ऑफ शाफ्ट ओवर टाउ ऑफ की। तीन फार्मूला आ गए। लेंथ, विड्थ और थिकनेस आपको कहां से पता लग गई? स्टैंडर्ड से, D/4 D/6 से। ठीक है, मजे की बात क्या है, तीन लेंथ के फार्मूला। अब आपके जहन में कंफ्यूजन होगी कि यार तीन लेंथ निकल आएंगी तो और तीन लेंथ कोई फार्मूला को देख के कह सकता है कि एक जैसी होंगी, तीनों का आंसर एक जैसा होगा? देख के लगता है आपको कि आंसर तीनों का सेम होगा? एनीवन? जो फिनिशिंग बस कोई इस पे कमेंट करना चाहे। अगर तीनों फॉर्मूलास को आप देखें तो क्या आपको लगता है कि तीनों से हम वैल्यूज डालेंगे आंसर तीनों का सेम आ जाएगा? सर जी लेंथ तो मसले चेंज नहीं खत्म हो हो जाएंगे। सकती, तो सेम ही आएगा। नहीं, लेंथ चेंज हो सकती है सर या आप डिजाइन कर रहे हैं? है ना, मैथमेटिक्स देख के बताइए, पॉसिबिलिटी है कि इन तीनों का आंसर सेम हो? नो सर। नहीं, मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। दो फिर भी सेम हो सकते हैं, तीनों सेम नहीं हो सकते। तो कोई बता सकता है कौन सी लेंथ लेंगे? सर सबसे छोटी जो आई वो लेंगे शायद। उलट, सबसे बड़ी बड़ी। लेंथ, सबसे बड़ी लेंथ लेंगे। क्यों बड़ी लेंथ लेंगे? जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी की सेफ होगी, उतनी स्ट्रेस ज्यादा लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, उतनी की में स्ट्रेस कम आएगी। इन तीनों फार्मूला में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी, अब हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, हमें तीनों निकालनी पड़ेंगी। ये पॉइंट समझ आ गया सारों को? हमें तीनों निकालनी पड़ेगी। जब हम तीनों निकाल लेंगे, जोन सी भी बड़ी होगी दैट विल बी आर डिजाइन लेंथ। तो जब तीन तीन लेंथ निकाल ली तो नाउ की हैज बीन डिजाइन, डब्ल्यू भी आ जाएगा, टी भी आ जाएगा और लेंथ भी आ जाएगी। कोई सवाल, ये बस मैं फिनिश करूं, कोई सवाल समझ आया तो जरूर पूछें। यू कैन आस्क क्वेश्चन इन क्लास टुमारो, वो कोई मसला नहीं, बेशक पूछ लीजिएगा, लेकिन मेरा मकसद है कि उसको मैं दोबारा गो थ्रू कीजिएगा आप लाजमी, एक बार आपको टाइम मिले, ताकि जब हम क्लास में डायरेक्ट प्रॉब्लम करें तो आपको इसमें मसला ना आए। ठीक है, अगर मैं क्विकली प्रॉब्लम दिखाऊं तो ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द की। देखें प्रॉब्लम को, अगर आप देखें तो ये प्रॉब्लम हम करेंगे क्लास में, लेकिन ये लेंथ, यहां पे डिजाइन ऑफ की भी लिखा आ सकता है, डिजाइन की। अच्छा, की के अंदर संग की बात होगी, इसलिए परेशान ना होइएगा, ये की बात है। ये मैं आपको करवाऊंगा आगे, ये हम करेंगे प्रॉब्लम क्लास में करेंगे तो फिर वो आपको समझ आएगा। सो एनी क्वेश्चन टिल डिजाइन कॉन्सेप्चुअली, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कोई इस तरह की चीज जो की में आपको समझ ना आया हो वो जरूर पूछिए। की अ सिंपल एलिमेंट, रेक्टेंगुलर एलिमेंट,
ठीक है, आई थिंक थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो हम इंशाल्लाह जो है वो कल इंशाल्लाह होपफुली हम मीट करेंगे और इसको फिर हम प्रॉब्लम इसका सॉल्व करेंगे। अटेंडेंस का क्या करेंगे सर जी? जी अटेंडेंस सर, यहाँ अटेंडेंस आप बस लीव कर दें आप। ओके